لڑکے کی زبان اکڑ گئی اور وہ میرے قدموں پر سر پٹکنے لگا۔ وہ جانے کہ کیا کہتا رہا، میں گنگ کھڑا اسے دیکھا کیا۔ آپ چلو صاحب ابھی، بیگم صاحب کی حالت بہت خراب ہے، اس نے گھگیا کر کہا۔ میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا، میری رگوں میں خون جم گیا تھا اور آنکھوں پر اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسی لمحے نرس ایمی کمرے کے دروازے سے مجھے پکارتی ہوئی باہر نکلی اور میرے پاس آ کے ٹھٹک گئی۔ اس کی آمد پر لڑکے نے میری ٹانگیں چھوڑ دی اور مجھ سے دور ہو گیا۔ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے؟ ایمی نے ہڑبڑا کے پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا؟ میری خاموشی پر وہ لڑکے کا کندھا جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تم روتا کیوں ہے؟ لڑکے نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر سسکتی آواز میں ایمی کی سماعت کو آزمائش سے دوچار کیا۔ کا بولتا ہے؟ ایمی سراسیمگی سے بولی۔ ایسا کیسے؟ نہیں۔ لڑکا سر جھکائے روتا رہا۔ ایمی نے مجھے ٹہوکا دیا اور تصدیق چاہی۔ میری جانب دیکھ کے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ ایک جہاں دیدہ عورت تھی، عمر رسیدگی سے برداشت مشروط ہے۔ اس نے لڑکے کی کمر تھپکی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آدھی انگریزی آدھی ہندوستانی میں تسلی دلاسے دینے لگی۔ اس نے لڑکے کو گھر واپس جانے کی ہدایت کی۔ لڑکے نے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہا۔ تم ابھی ادھر سے جاؤ، ایمی نے حکمیہ انداز میں کہا۔ جاؤ ابھی۔ لڑکا کچھ دیر شاید میرے کچھ کہنے کے انتظار میں کھڑا رہا۔ میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا کہ ایمی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک لیا اور لڑکے کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنے کو سنبھالو۔ خود اس کی آواز بکھری ہوئی تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ ابھی رات کو تو وہ… نہیں۔ وہ سر جھٹکنے لگی۔ ایسا کیسے؟ میں پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کے بے ربطی سے انگریزی میں کہا۔ ڈاکٹر رائے تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ تمہارے بھائی کی حالت اس وقت خاصی بدتر ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے کچھ باتیں کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ تم ابھی اندر چلو۔ مگر تمہارا اس وقت اندر جانا… میں ڈاکٹر سے کیا کہوں؟ وہ بری طرح بدحواس نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اندر جا کے دیکھتی ہوں۔ کہیں جانا مت، کہیں بھی نہیں، سمجھے؟ مجھے تنہا چھوڑ کے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوتے اس نے کئی بار مجھے مڑ کے دیکھا۔ مجھ سے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ میں نے وہیں راہدری کے چبوترے پر بیٹھنا چاہا، لیکن دوسرے لمحے 2-3 ڈاکٹروں کے ساتھ ڈاکٹر رائے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور میری جانب لپکتا ہوا آیا۔ کیا کہتی ہے یہ ایمی؟ اس نے وحشت آمیز لہجے میں کہا اور ایک سانس میں جانے کیا کچھ بولتا اور پوچھتا رہا۔ میں نے کچھ سنا کچھ نہیں اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے چپڑتی آواز میں پوچھا۔ ایمی بھی کمرے سے آ گئی تھی۔ اس کی دخل اندازی پر ڈاکٹر رائے نے پھر مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ایمی ہی اس سے کچھ خسر پسر کرتی رہی۔ کچھ لمحوں تک ڈاکٹر خاموش رہا، پھر میرا بازو تھام کے مجھے کمرے میں لے جانا چاہتا تھا کہ لوٹ پڑا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کو آگے چلے جانے کی تاکید کی اور تیز قدموں سے راہدری میں چلتا ہوا کچھ دیر بعد ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک مختصر اور صاف ستھرا کمرہ تھا۔ وہاں موجود نرس اور ڈاکٹر کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر رائے کے تیور سے انہوں نے اس کا عندیہ سمجھ لیا اور سٹ پٹاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ میز کے اطراف رکھی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر مجھے بٹھا کے ڈاکٹر رائے میرے برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہے یہ سن کے تم پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ اضطراری لہجے میں بولا، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ نہیں جو تم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو۔ مجھے بتاؤ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا؟ کیا بتاؤں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھ سے ذرا ہوش میں آ کے بات کرو۔ ڈاکٹر رائے کا لہجہ ترش ہو گیا۔ رات کو کتنے بجے تک وکیل صاحب تمہارے ساتھ تھے؟ وہ 1 بجے کے بعد یہاں سے اٹھے تھے۔ 1 بجے کے بعد؟ وہ جذب ہو کے بولا۔ نرس ایمی نے آ کے ہمیں ٹوکا تھا کہ 1 بج چکا ہے۔ وہ فوراً اٹھ گئے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کوئی 20-25 منٹ بعد اسپتال سے رخصت ہوئے تھے۔ اس دوران صدر دروازے کے راستے میں وہ رک رک کر باتیں کرتے رہے۔ یہاں سے جانے کو تو ان کا جی نہیں چاہتا تھا، مگر گھر کہہ کے نہیں آئے تھے وہ۔ صدر دروازے پر میں نے ان سے کہا بھی میں ساتھ چلتا ہوں، اسی تانگے سے واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے یہ میرا شہر ہے میاں۔ بہت اعتماد تھا انہیں اپنے پہ۔ میری آواز سسکنے لگی۔ پھر تم اپنے کمرے میں واپس آ گئے؟ جی ہاں، رات بہت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں جاگتا رہا، پھر نیند آ گئی۔ ڈاکٹر چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ اس شہر کے مشہور وکیل تھے، یہیں کے رہنے والے، بہت خاندانی آدمی۔ کون ان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ میرے سینے میں آگ سی بھڑکی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا اور مشکل سے اپنی زبان بند رکھی۔ تمہاری ان سے اس شہر میں آنے کے بعد ملاقات ہوئی تھی؟ ڈاکٹر کے تند و تیز لہجے سے مجھے اور گھٹن ہونے لگی۔ اس سے پہلے تم انہیں نہیں جانتے تھے؟ 2 دن ہی، میں نے متصراً کہا، بس 2 دن سے۔ رات کو تم سے کیا باتیں کرتے رہے؟ یہی اپنے گھر، بیوی، بچوں کی۔ اور تم کہتے ہو تمہاری جان پہچان کو 2 ہی دن ہوئے تھے؟ ڈاکٹر کی آواز میں تلخی نمایاں تھی، لیکن اس مختصر مدت میں وہ مجھے بہت قریب سمجھنے لگے تھے۔ وہ بہت اچھے، بڑے صاف دل آدمی تھے۔ میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں۔ لگتا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میرا جی امڑنے لگا اور آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ نہ اس طرح نہیں، وہ تنبیہی آواز میں بولا۔
تمہیں اندازہ ہے پولیس کسی بھی وقت یہاں آ کے تم سے تفتیش کرے گی، ممکن ہے راستے میں ہو۔ بہتر ہوگا کہ پولیس کے آنے سے پہلے مجھے صاف صاف بتاؤ، مجھے شبہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، اب بھی یہی کر رہے ہو۔ اصل بات سے واقف ہو کہ شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ میں سر جھکائے بیٹھا اپنے آپ کو نوچتا رہا۔ تمہارا کسی پر شبہ ہو تو بتاؤ، تم سے رات انہوں نے اتنی باتیں کی تھی، کسی طرف انہوں نے کوئی اشارہ کیا، کوئی ایسی بات؟ ڈاکٹر کے پیشانے پر شکنیں پھیل گئیں۔ میں اسے کیا بتاتا، کیا نہیں۔ خاموشی کا اب کوئی محل بھی نہیں تھا۔ جلد یا بد دیر اب تو سب کچھ عیاں ہو جانا تھا۔ میں نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ کیا؟ ڈاکٹر رائے اچھل پڑا۔ کیا کہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے؟ میرا منحوس سایہ جو ان پر پڑ گیا تھا۔ کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ ایک جگہ اور ایک آدمی کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، پہلے بھی کتنی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، یہاں بھی یہی ہوا۔ تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو شاید۔ ڈاکٹر رائے کا چہرہ بگڑ گیا۔ یہی کچھ ہے ڈاکٹر صاحب، نہ ہم یہاں آتے، نہ اینتھنی اپنی جان سے جاتا، نہ اکبر علی خان اور نہ کوئی اور۔ اینتھنی کا اس سے کیا تعلق؟ ڈاکٹر رائے بفر کے بولا، آپ نہیں سمجھیں گے۔ میں نے ڈوبتی آواز میں کہا، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم بہت برے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور جبری سا ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے کھل کے بتاؤ دوست، میں واقعی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا تم کوئی برے آدمی ہو، تم یا تمہارا بھائی، آپ ایک دوسرے کے مثبت آدمی ہیں۔ بہتر ہوگا آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، آپ بہت الجھ جائیں گے، یہاں بہت سے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ ایسی باتیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، ہم بھگتتے رہتے ہیں، لیکن آپ… ڈاکٹر چھپکتی نگاہوں سے تا دیر مجھے دیکھتا رہا۔ تم کون ہو؟ درشتی کے باوجود اس کے لہجے سے ہیبت عیاں تھی۔ کچھ توقف کے بعد وہ بے اتنائی سے بولا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو تو کہو، ورنہ مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میرا کوئی ضیاع نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں۔ تم یہاں اس اسپتال میں ہو اور کسی طور اس افسوسناک واقعے کا تعلق اسپتال سے بھی نکل آتا ہے، اور اسپتال کا اپنا ایک نام اور اپنی ایک عزت ہے۔ مجھے تم پہلی نظر میں بہت سے نوجوانوں سے مختلف نوجوان نظر آئے تھے، اس لیے… وہ کہتے کہتے رک گیا اور پہلو بدلنے لگا۔ ایسی باتیں نہ کیجیے ڈاکٹر صاحب، میں نے عاجزی سے کہا۔ آپ نے مجھ ایک اجنبی کو بہت عزیز رکھا، بہت اچھا سلوک کیا مجھ سے، لیکن میری بدقسمتی ہے، عزت مجھے راس نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ بھی غلط نہیں تھا، بہت سیدھی سی بات ہے۔ اپنے بھائی کے علاج کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا تھا۔ بھائی کی کیا حالت تھی اور اب کیا ہے، یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہم تو کہیں اور جا رہے تھے، بس یہاں آ کے مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوگی، غلطی بھی تھی یا نہیں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ایک ذرا سی بات اتنی دور تک جا سکتی ہے، پھر ایک کے بعد ایک انہونی ناگہانی سے واسطہ پڑتا رہے گا۔ میں آپ کو کیا کیا اور کس حد تک بتاتا کہ پرسوں آدھی رات کے بعد آنے والے لوگ کسی اور کی نہیں میری جستجو میں آئے تھے۔ نرس ایمی نے احتیاط کی، جانے کیا سوچ کے اس نے منع کر دیا کہ میں کمرے میں موجود نہیں ہوں۔ انہیں حجت کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ ادھر سے اسپتال کے عملے نے شور مچا دیا، ان کے تعاقب سے وہ درندے بوکھلا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، مگر صدر دروازے پر اینتھونی ان کے آڑے آ گیا اور اپنی جان دے بیٹھا۔ وہ لوگ تو مجھے ختم کرنے آئے تھے۔ میں کل صبح بھی آپ کو اصل بات بتا سکتا تھا کہ اینتھونی کیوں مارا گیا۔ وہ غریب تو ایک طرح سے چارہ بن گیا اور اس نوجوان سے زندگی چھیننے والے ہی نہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کمرے میں آپ کی موجودگی کے درمیان جو 2 پولیس آفیسر آئے تھے، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ پردہ پوشی بے مصلحت نہیں تھی ڈاکٹر صاحب، آپ میرے بھائی کا علاج جس تندہی سے کر رہے ہیں، آپ نے میری تلخ باتیں جس تحمل اور ناز سے برداشت کی، میرا تو رواں رواں آپ کا احسان مند ہے۔ میری جگہ آپ ہوتے تو شاید یہی کچھ کرتے۔ میرے اور بھائی کے بارے میں آپ کے کسی ناخوشگوار تاثر سے بھائی کا علاج متاثر ہونے کا اندیشہ بیجا تو نہیں تھا۔ بھائی بیمار ہے اور آپ ڈاکٹر ہیں، کسی اور جانب آپ کی توجہ بھٹک جائے، ان ناگفتنی سے آپ کو دور رکھنے، خواہ مخواہ آپ کے منتشر اور پریشان ہو جانے کے خیال سے میں نے زبان بند رکھی۔ ایمی کو میں نے سارا کچھ بتا دیا تھا، اور وہ بہت کچھ نرس سیورن کو بھی۔ میرے التجا پر وہ خاموش رہیں۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ڈاکٹر رائے الجھ کے بولا۔ اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ آ جائے گا اب سبھی کچھ، میں نے ناتوانی سے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چھپانا، پردے کا اب کچھ حاصل نہیں، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، جو ہو چکا ہے اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر حتمی لہجے میں بولا۔ میں نے اسے بٹھل کو اسپتال میں داخل کرنے کے بعد دوسری صبح لباس تبدیل کرنے کے لیے ہوٹل جانے اور ڈاک خانے سے جا کے تار دینے اور بٹوا چھن جانے پر چور کا پیچھا کرنے وہاں پیش آنے والے حادثے کے متعلق بتایا۔ میں نے کہا مجھے جلد از جلد اسپتال واپس پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ادھر پولیس نے تعاقب شروع کر دیا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن
لیکن سامنے آ جانے کے بعد پولیس کے طریقہ کار، رسمی کارروائیوں، تفتیشی مراحل سے گزرنے میں وقت لگ سکتا تھا۔ شہر میں میرا کوئی شناسہ نہیں تھا۔ ایک ہجوم تانگے کے پیچھے تھا، پولیس کے علاوہ عام لوگ بھی۔ ایک جگہ سڑک کے موڑ پر تانگا ہجوم سے اوجھل ہوا تھا کہ تانگے سے کود کے میں قریب کی ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ راستے معلوم نہیں تھے، گلیوں گلیوں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک جگہ ہجوم کا شور سن کے اور کوئی چارہ نہ دیکھ کے میں نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ جواب میں آنے والے شخص کو اپنی مشکل بتانے اور کچھ دیر کے لیے پناہ کی بھیک مانگنے کا نتیجہ بہتر نکلنے کی توقع نہیں تھی۔ اپنی صفائیوں اور صراحتوں کے لیے وقت بالکل نہیں تھا۔ گلی کا کوئی راہگیر مجھے ایک مکان کے دروازے پر کھڑا مکان کے مکین سے حجت کرتے ہوئے دیکھ سن سکتا تھا۔ پولیس والوں کو تانگے والے نے یقیناً بتا دیا ہوگا کہ میں کس جگہ کس طرف کی گلیوں میں گم ہوا ہوں گا، جو ان کا رخ اس طرف ہو گیا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازے پر نمودار ہونے والے شخص کو مجھے چاقو کی زد پر لینا پڑا۔ پولیس والوں کو تانگے والے نے یقیناً بتا دیا ہوگا کہ میں کس جگہ کس طرف کی گلیوں میں گم ہوا ہوں گا، جو ان کا رخ اس طرف ہو گیا تھا۔ دستک کے جواب میں دروازے پر نمودار ہونے والے شخص کو مجھے چاقو کی زد پر لینا پڑا۔ اسے گھر میں دھکیلتے ہوئے میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ وہ صاحب اکبر علی خاں تھے۔ اکبر علی خاں؟ وکیل صاحب؟ ڈاکٹر رائے حیرانی سے بولا۔ وہ بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ سبھی کا جو حال ہونا تھا وہ ہوا۔ مکینوں کی بدوباش، طور اتوار اور اپنے لیے اس گھر کی صورتحال سے مطمئن ہو کے میں نے اس طرح ان کے گھر میں گھسنے پر معذرت چاہی، اپنی آمد کا مقصد بتایا اور کچھ دیر پہلے ڈاک خانے والی گلی میں پیش آنے والا واقعہ سنایا۔ میں نے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا، نہ کسی کو زک پہنچائی تھی۔ پناہ کے سوا میرا کوئی اور مطالبہ بھی نہیں تھا۔ وکیل صاحب نے میری ردات توجہ سے سنی۔ وہ دنیا دیکھے ہوئے ایک سچے اور کھرے آدمی تھے۔ انہیں مجھ پر یقین آ گیا۔ میں نے بھی پھر ان پر اعتبار کر کے چاقو جیب میں رکھ لیا اور بیوی بچوں کو بیٹھک سے گھر کے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ تم سچ بول رہے ہو؟ میرے پاس یہی کچھ ہے کہنے کے لیے، میں نے کشیدہ لہجے میں کہا۔ تم ہمیشہ چاقو پاس رکھتے ہو؟ میں نے سر جھکانے پر اکتفا کی۔ مگر کیوں؟ کس لیے؟ ہمیں ایسے واقعات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، میں نے استگی سے کہا۔ ڈاکٹر کی پھیلی آنکھیں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ گہری سانس بھر کے بولا۔ تو تم نے اکبر علی خاں کو قائل کر لیا؟ میں نے اسے بتایا۔ یہ اتفاق تھا، یا یوں کہیے میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اکبر علی خاں جیسے صاحب دل کے مکان پر دستک دی۔ انہوں نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور مجھے اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے طرح طرح کی تدبیروں پر غور کرتے رہے۔ ڈاکخانے کی گلی میں جس آدمی کی پسلی میں چاقو پیوست ہو گیا تھا اور جس بدحواس آدمی نے ناپختگی اور نداستگی میں اپنے ہی ساتھی کو زخمی کر دیا تھا، وہ تیسرا بھی جس نے میری جیب سے بٹوا چرایا تھا، تینوں شہر کے نامی گرامی استاد میدہ کے آدمی تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی زبانی مجھے میدہ استاد سے ان کی وابستگی کا علم ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ میں نے کہا کہ ہر جگہ شہر کے دادا یا استاد کے اڈے کی ہیبت چھائی رہتی ہے۔ پولیس بھی کسی سنگین واردات میں دادا اور اس کے آدمیوں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے 10 مرتبہ سوچتی ہے۔ ظاہر ہے میدہ استاد کے آدمیوں کے اشارے پر پولیس حرکت میں آئی تھی۔ میدہ کا ایک ساتھی زخمی ہو گیا تھا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ بھی رہ سکے گا یا نہیں۔ میں تو فوراً گلی سے چلا آیا تھا۔ اس تمام واقعے کے گواہ گلی کے مکین اور راہگیر تھے، لیکن یہ میدہ استاد کے اڈے کا معاملہ تھا۔ گلی کے لوگ اور راہگیر اس کے زور و اثر سے واقف تھے۔ طاقت سب سے بڑا سچ ہوتی ہے۔ اڈے کے ساتھیوں اور عام لوگوں کی نظروں میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے استاد میدہ کو فوراً سرگرم ہو جانا چاہیے تھا۔ پولیس اور شہر میں بکھرے ہوئے میدہ کے ساتھیوں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اسپتال پہنچنا ممکن نہیں رہا تھا۔ اکبر علی خاں نے معاملہ دب جانے تک مجھے اپنے گھر میں روپوش ہونے کا مشورہ دیا اور مہربانی کی انتہا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میری بٹھل کی خبر گیری نگرانی کرتے رہیں گے۔ اس دوران بہتر ہوگا کہ میں تار دے کے اپنے عزیزوں اور دوستوں میں سے کسی کو یہاں بلا لوں، مگر ان کا کوئی مشورہ صائب نہیں لگتا تھا۔ مجھے یاد تھا ڈاک خانے والی گلی میں نے میدہ کے بد دماغ ساتھیوں سے اسپتال کا ذکر کیا تھا۔ تانگے والا بھی مجھے اسپتال سے ہوٹل پھر ڈاک خانے لے گیا تھا اور واپسی میں بھی اس کا رخ اسپتال ہی کی طرف تھا۔ ان شواہد اور اسپتال سے میرے غیاب اور اکبر علی خاں کی موجودگی سے وہ ساری صورتحال بھانپ لیتے اور یوں اپنے گھر میں مجھے پناہ دینے کی فیاضی اکبر علی خاں کو بڑی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ بٹھل کو اس حالت میں تنہا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ مریض کو چھوڑ کے تیماردار کے غائب ہو جانے پر سب سے زیادہ وحشت اسی کو ہوتی۔ اس کے دماغ میں جانے کیسے کیسے وہم نمو پاتے۔ اسپتال کے عملے میں بھی چمگوئیاں ہونے لگتی۔ ویسے بھی مجھے یقین تھا میں اسپتال پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جاؤں تو جلد یا بد دیر میدہ اور اس کے حاشیہ بردار سرہ پکڑتے ہوئے میرے سر پر آ دھمکیں گے۔ میں نے اکبر علی خاں کے سارے مشورے مسترد کر دیے۔ میدہ استاد سے بذات خود ملنے کا ارادہ کیا۔ اکبر علی خاں نے مجھے بہت سمجھایا بجھایا،
मैदा जैसे खतरनाक आदमी से दूर रहने की तलकीन की, लेकिन फिर और क्या सूरत थी। मेरे इरादे में कोई लचक ना देख के उन्होंने खुद भी मेरे साथ चलने की जुर्रत कर ली। मैं उन्हें इस मामले से लग ही रखना चाहता था, वो नहीं माने और हम दोनों मैदा के ठिकाने पर पहुंच गए। मैदा के ठिकाने पर? डॉक्टर राय उछल पड़ा, ये जानते हुए कि मैदा कौन आदमी है। फिर मैं क्या करता? यही एक आखिरी रास्ता रह जाता था। मैं खुद इसके पास पहुंच जाऊं और उसे सच बताऊं कि मैंने इसका कोई आदमी जख्मी नहीं किया है। मैं ऐसे वक्त जब मेरा भाई ज़िंदगी के लिए जदोजहद कर रहा है, किस तरह किसी उन्नाद और फसाद का ख़तरा मोल ले सकता था। मेरा ख्याल था वो अड्डे के तौर तरीक़ों में खरा है, जैसा कि अड्डों की चौकी पर बैठने वाले बेशतर दादा उस्ताद लोग होते हैं, तो वो मेरी बात सुनेगा। मैं इसे कहूँगा कि गली के लोगों से तस्दीक किए बगैर उसे कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। मेरा बटवा छीना गया था। चोरों का ताक़ुब करके उसे ज़ेर करके मैंने बटवा हासिल कर लिया। क्या गलत किया था? फिर इसके दो साथी अपने चोर साथी का अंजाम देखने के बावजूद ज़्यादती पर क्यों उतर आए? उन्हें जानना चाहिए था कि कोई आदमी चोर को काबू कर सकता है तो उनके लिए भी भारी पड़ सकता है। बात बढ़ जाने के ख्याल से मैंने हाथ बांधे रखे, अपना चाकू भी नहीं निकाला। वो दोनों जाने किस खुमार में थे, अपने साथी की अज़मियत से होशो हवास खो बैठे थे, मरने मारने पर तुल पड़े। रफा शर के लिए मैंने अपना बटवा भी इनकी नज़र करना चाहा। गली के लोगों पर मैदा की खैबत और दहशत से अमान मिले तो ज़रूर सच बोलेंगे। मैंने सोचा मैदा से कहूँगा कि मेरी इसकी कोई अदावत नहीं है, मुझे तो अपने भाई की वजह से इस शहर में रुकना पड़ा। हकीकत इससे कुछ दूर नहीं है। उसे पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल तक जाने की जहमत करना पड़ेगी, लेकिन मैदा के सामने जाके मैंने ये कुछ नहीं कहा। एक नज़र में अंदाज़ा हो गया था कि उसे बहुत अरसे से चाकू उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जिस्म पर चर्बी की हल्की सी तह जम चुकी थी। आदमी के जिस्म पर उगती चर्बी लोहे से चिमटने वाले जंग के मानित होती है। मैंने उस्ताद मैदा से कहा, मैं अड्डे की चौकी का दावेदार बन के आया हूँ। हड्डों की जो रीत है वो चौकी से खुद उतर जाए या फिर चाकू निकाल के तमाम साथियों के सामने दावेदार से जोर करे और चौकी पर मौजूद रहने का हक साबित करे। तुमने इसके ठिकाने पे जाके उसे चाकू आजमाई की दावत दी? डॉक्टर राय हैजानी आवाज़ में बोला। तुम वो हुकुलाने लगा। उसने पूछा, किस एतमाद में कि मैं उसे जेर कर लूँगा? मैंने सर्द लहजे में कहा, यानी तुम उसे जेर कर सकते थे? किसी कदर इम्कान मगलूब हो जाने का भी था। तो क्या होता? डॉक्टर राय ने तलखी से पूछा। मैं जेर हो जाता। यूँ भी तो उसके शिकंजे में था। तुम्हें अपनी चाकूबाजी पर इतना एतमाद किस वजह से है? सिर्फ चाकू नहीं, और भी कई ऐसी चीज़ों की मुझे तरबियत दी गई है। तरबियत दी गई है? मैंने किसी हिचकिचाहट के बगैर इकरार किया। मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि मुझे ये सब कुछ सीखना पड़ा। तुम तो एक पढ़े लिखे नौजवान मालूम होते हो। ये भी एक तालीम है। अपने आप को खतरों से निपटने के लिए तैयार रखना, ये भी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। उसके होंठ सिकुड़ गए और उसने सर हिला के तज़ब्ज़ब से तायीद की। तो मैदा चौकी से उतर आया? इतना आसान नहीं था उसके लिए। वो जाने कब से अड्डे की चौकी पर बैठा हुआ था। मैंने डॉक्टर राय को सारी तफसील बताई कि अपने ठिकाने पर एक अजनबी की इस तरह अचानक आमद और मुबारज़त के लिए मुसलसल इसरार से उसे चौकन्ना और मोहतात हो जाना चाहिए था। डाखाने वाली गली का वाक़या भी पेश नज़र होगा। अड्डे पर इसके तकरीबन सारे साथी मौजूद थे। उसका तो सब कुछ दाव पर लग चुका था, मनसब, इज़्ज़त, दबदबा। उसने मेरा मजाक उड़ाने, भपतियाँ कसने और ज़ोर आज़माई के नतीजे में ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार हो जाने, तरह तरह से मेरा अज़म शिकस्त करने और ख़बरदार करने की कोशिश की। इस दौरान अकबर अली ख़ान ने दखलंदाजी की और जितने मुस्तर अंदाज में मेरी पैरवी कर सकते थे उन्होंने अपना हुनर आजमाया। उन्हें एहसास था ये अदालत नहीं है, वो एक मुख्तलिफ़ जगह पर और मुख्तलिफ़ लोगों में घिरे हुए हैं। इन्हें नित नई दलीलें तराशने और बयान में सोज़ो गुदाज पैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दलीलो बयान सदाकत पर मबनी हो तो उनकी तवानाई ही कुछ और होती है। उनका अंदाज़ गैर जानिबदाराना, नपातुला, और जो कुछ मैंने उनसे कहा था उन्होंने यकीन कर लिया था। दलीलो बयान सदाकत पर मबनी हो तो उनकी तवानाई ही कुछ और होती है। उनका अंदाज़ गैर जानिबदाराना, नपातुला, और जो कुछ मैंने उनसे कहा था और उन्होंने यकीन कर लिया था, इसी के मुताबिक था। जो सच अड्डे पे जाके मैं उस्ताद मैदा को बावर कराना चाहता था और मैदा को देख के मैंने इरादा बदल दिया था, वो काम निहायत खुश वज़ई से अकबर अली ख़ान ने अंजाम दे दिया था। अड्डे के लोगों के हजूम में मैदा को अपनी बात बनी रहने की बेचैनी शदीद होगी। अकबर अली ख़ान के बयान ने उसे कई जवाज़ फराहम कर दिए थे। मुझसे कुशादा दिली का सलूक करने और सरदस्त ये नाजुक मरहला हुस्न खूबी से टल जाने के जवाज़ मैदा के पहलू नशी उम्र रसीदा शख्स ने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। इस आजमूदा कार ने दरिया दिली के इजहार में पहल की और
दरमियान की राह निकाली और मैदा को बज़ाहिर बादल नख्वास्ता एक फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मैदा ने अपने साथियों की दिलजमी के लिए चाकू निकाल लिया था और चौकी से उतरा चाहता था कि बुजुर्ग साथी ने उसका हाथ पकड़ के चाकू अपनी तहवील में ले लिया और कोई लम्हा गवाए बगैर निशाना लेके मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने सोचक लिया, मैं इनकार कर सकता था, लेकिन मैंने वक्त की ये रियायत गनीमत जानी कि मुझे मैदा के अड्डे चौकी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो अस्पताल पहुंचने का रास्ता साफ करना था। जवाब में मैंने अपना चाकू बूढ़े आदमी की तरफ उछाल दिया, जो उसने महारत से गिरफ्त में ले लिया। इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर ने बेचैनी से पूछा। मैंने इस कनाए का मतलब उसे समझाया। सर दस्त मुबारज़त मुलतवी की जाती है। एक दूसरे के पास उस वक़्त तक अमानत रहेंगे जब तक मैं अपना चाकू वापस लेने ना आ जाऊँ। बुजुर्ग ने मैदा की तरफ से ऐलान किया कि मैदा मुबारज़त के लिए आमादा है, लेकिन ऐसे वक्त में जब इसकी हमसरी का दावा करने वाला अड्डे की चौकी का तलबगार अपने भाई की अलालत की वजह से परेशान और मंतशर है, मार्का आराई मुनासिब मालूम नहीं होती। मैदा अपने मुकाबिल को जहनी प्रगंदगी से छुटकारा पाने की मोहलत देता है कि इस पर मुखालिफ की मुस्तरबाना हालत से फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम ना आने पाए। यह मैदा के अपने इत्मीनान का मामला भी है कि किसी यकसु मुखालिफ से पंजा आज़माई करके नाकामी कामयाबी दोनों सूरतों में से खुद से कोई शिकायत और अपने साथियों के सामने नदामत नहीं होगी। सन रसीदा आदमी ने मुझे ये जताना ज़रूरी समझा कि ये मोहलत मैदा की अला ज़रफ़ी पर महमूल की जाए। मैदा मुबारज़त के लिए मेरी जल्द अज जल्द वापसी का मुंतज़र रहेगा। इस अल्तवा में कई पहलू मुज़म्मर थे। चौकी छिन जाने का खतरा मैदा के सर से टल गया था। अड्डे के आदमियों की नज़रों में बड़ी हद तक इसका वक़ार बहाल रहा था। इस मोहलत में मेरी तरफ से चौकी के मुतालबे से दस्तबरदारी और नज़र सानी का एक इम्कान मौजूद था कि भाई की सेहत याबी के बाद मेरी जानिब से नरमी और नरम दिली की तवक्का वजह तौर पर की जा सकती थी। मैदा को चौकी बचाने की तदबीरों पर गौर करने का वक्त मिल गया था। इस अरसे में मेरा किस्सा तमाम कर देने की एक कोशिश भी की जा सकती थी। इस मोहलत की बड़ी अहमियत थी। फैसले पर मैंने कोई हुज्जत नहीं की। चाकुओं के तबादले से मेरी मुराद यकसुर इकरार ही थी। हम दोनों में, मैं और अकबर अली खां, फिर वहाँ से चले आए और रास्ते में कोई दीवार ना बना। डॉक्टर राय चंद लम्हे चुप रहा, फिर भारी आवाज़ में बोला, अगर ये सूरत ना होती, मैदा और तुम्हारे दरमियान होने वाली ज़ोर आजमाई में तुम कामयाब हो जाते तो अड्डे के आदमी तुम्हें बखुशी अपना उस्ताद कबूल कर लेते। मैंने कहा, बखुशी तो शायद नहीं, लेकिन अड्डों के लोग अपने रीति रिवाज का बड़ा ख्याल रखते हैं। अड्डों का यही दस्तूर है कि सबसे ज़्यादा जोरावर ही चौकी का सजावार हो सकता है। मुस्तैद, दुरुस्त और जल्द फैसला करने में ताक और अड्डे के आदमियों पर साया बने रहने की खूबियाँ मुस्तज़ात हैं। किसी नातवा और मजहूल को वो चौकी पर देखना पसंद नहीं करते, लेकिन पसंद की बात और है। उन्हें ये इख्तियार नहीं होता कि वो अड्डे पर मौजूद उस्ताद को चौकी से हटा सके। उन्हें बजबर सही इस वक्त तक उसे कबूल करना पड़ता है जब तक इस अड्डे से या बाहर से चौकी का कोई नया तलबगार ना आ जाए और चौकी पर ना बैठ जाए। अड्डे की चौकी का फैसला फ़र्द ही के दरमियान होता है। अड्डे के लोग बाहमी मुशावरत से किसी एक को मंतखब नहीं कर सकते। इधर अड्डे की चौकी पर कायम उस्ताद के सर पर हमेशा तलवार लटकती रहती है। उसे किसी भी नए दावेदार से मुबारज़त के लिए हर वक्त कमर बस्ता रहना पड़ता है। अगर वो समझता है कि दावेदार कसबल में उससे ज़्यादा तवाना है तो बेहतर यही होता है वो खामोशी से खुद ही चौकी खाली कर दे। ज़िद और गुस्से से जिल्लत का भी सामना करना पड़ सकता है। बुजुर्ग आदमी ने मैदा की इज्जत रख ली। उसने अड्डे के लोगों के सामने जाहिर यही किया कि मैदा ने उसकी बात मान के उसका मान रखा है, बड़ा एहसान किया है। तुम्हें इन अड्डों पहाड़ों की इतनी मालूमात कहाँ से हासिल हुई? डॉक्टर ने ताजुब से पूछा। मुझे इसी सवाल की तवक्का थी। मैंने किसी तामुल के बगैर जवाब दिया। मेरा अड्डों पहाड़ों से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है। डॉक्टर ने एक लंबी सांस खींची। तो कामयाब होने के बाद तुम मैदा के अड्डे के मालिक बन जाते, उसने तकरार की। मैंने आपको बताया है, मैदा को देख के मैं इसी नतीजे पर पहुंचा था। मेरा यही ख्याल था कि उस पर काबू पाया जा सकता है। नहीं, उसने कसमसाती आवाज़ में कहा, मैं जानना चाहता हूँ अड्डे के चौकी पर तुम बैठना नहीं चाहते थे, फिर तुम्हारी कामयाबी के बाद अड्डे की सरबराही की क्या सूरत होती? मैं अपनी जगह किसी को भी आर्जी तौर पर नामजद कर सकता था, उस ममर आदमी को भी जो मैदा का मुरब्बी मालूम होता था, लेकिन वो अड्डे का सरबराह नहीं होता। किसी नए दावेदार के उठने के मौका पर मुझी को उससे मुबारज़त करनी पड़ती, अड्डे के अबूरी सरबराह को नहीं। मेरे लिए सारा कुछ मेहरान कुन है। डॉक्टर राय आंखें चढ़ा के बोला, ये तो एक दूसरी दुनिया है। मैं इसलिए आपको कुछ बताना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने झुझरी ली। तुमने कितना बड़ा ख़तरा मोल लिया था अगर मैदा उस्ताद तैयार हो जाता और तुम। मैंने इसके अंदेशे की तरदीद की। चाकू आजमाई के लिए बल के अलावा और भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हाजिर दिमागी निगाह की बरजस्तगी, मुकाबिल को हिलों से तज़बज़ब कर देने की मशाकी और बहुत सी बातें। मैदा को मुझ अजनबी के ज़ोर और महारत का कोई अंदाज़ा नहीं था। इसकी जगह कोई भी होता तो यही
तरदद करता। अपने 3 आदमियों का अंजाम देखने और अड्डे पर मेरे इस तरह धमकने के बाद जहनी तौर पर जिच हो जाता। सो इसके लिए यही मुनासिब था कि मुझे मोहलत देने की फयाजी के बहाने से कुछ मोहलत मिल जाए। तुमने पहले कभी मैदा जैसे किसी उस्ताद से चाकू आजमाई की है? मुझे झिझक हुई। एक लहजे के तवक्कुफ के बाद मैं इकरार कर लिया। वाकई? वो हैरत से बोला। और अंजाम? अंजाम बेहतर होने की तवक्का न हो तो अपने मुखालिफ को दावत नहीं देनी चाहिए। तो तुम भी किसी अड्डे पाड़े की चौकी पर बैठते रहे हो? नहीं, मैंने सगी से कहा। चंद रोज़, एक बार कुछ ज़्यादा। अपना आदमी मुकर्रर करके मैं हर जगह से चल दिया। डॉक्टर के कोई और सवाल करने से पहले मैंने सराहत की। कई अड्डे हासिल किए और अपनी मर्ज़ी से नहीं। किसी जगह अड्डे के उस्ताद ने कोई रुकावट खड़ी की या इसने किसी मजलूम शनासा किसी दोस्त से ज़्यादती की, जुल्म रवा रखा तब। और अड्डा हासिल करने के बाद तुम वहाँ से चले आए? जी हाँ, इसलिए कि मेरा काम अड्डागिरी नहीं है। कितने अड्डों के उस्तादों से तुमने ज़ोर आजमाई की? डॉक्टर राय की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। गिनती याद नहीं है डॉक्टर साहब। यानी बहुत से? बहुत ज़्यादा तो नहीं। और सभी में तुम सुरखरू हुए? मैं खामोश रहा। खामोशी ही मेरा जवाब थी। डॉक्टर राय का मुंह खुला हुआ था और उसकी पलकें पटपटा रही थी। तुम्हारा भाई भी इन फ़नून में कोई वर्क रखता होगा? उसका लहजा तंजिया था। जी हाँ, मैंने मुतसरन कहा। तुमसे ज़्यादा? मैं क्या, वो तो दूसरे आदमी हैं। मैं इनके लिए क्या कहूँ? आपने तो उन्हें सिर्फ इस हालत में देखा है। मैंने ऐसी बेचारगी, ऐसी गफलत में उन्हें कभी नहीं देखा। वो तो सोते में भी जागते रहते थे। दीवार पार का उन्हें नज़र आ जाता है। दूर दूर की आवाज़ें उन तक रसा हो जाती हैं। उनका सीना तो कोई समंदर है। उनके बहुत से बाजू हैं। वो तो एक साया है बहुत सौ के लिए, और वो तो किसी चट्टान के मानते हैं। इस हाल में उन्हें देख के मुझ पर जो गुजरती है वो आप नहीं जान सकते। वो इन सारे फ़नून में ताक है। मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा, लेकिन इनकी बर्दाश्त, उनका हौसला, उनका अज़म, मैं तो कुछ नहीं हूँ इनके आगे। मैं क्या? मेरी आवाज़ रिंधने लगी। डॉक्टर आंखें मीचे देर तक चुप रहा, फिर यकायक हुड़क के बोला, तुम्हारा भाई भी किसी अड्डे पाड़े का राजा है? हाँ, मैंने किसी इकरार के बगैर जवाब दिया। लेकिन अब तो बहुत दिनों से वो मेरे साथ मुसलसल सफ़र में रहते हैं। सफ़र क्यों? कारोबार के सबब से? नहीं, कारोबार नहीं। मुझसे फ़ौरन कोई जवाब न दिया जा सका। मुझे मुतरद्दिद देख के उसने कहा, कोई ऐसी बात जो मुझसे नहीं कहनी चाहिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ और मत सोचिए। इस मामले का अड्डे पाड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक तवील रुदात है और बहुत ज़ाती है। इसकी तफसील फिर कभी सही। मुतसरन ये कि हमें अपने खोए हुए किसी अजीज़ की तलाश है। हम हर तरफ से ढूंढ रहे हैं, गलियों गलियों, शहरों शहरों। खोए हुए अजीज़ की? डॉक्टर के चेहरे पर लकीरें नुमायाँ हो गई। कौन है वो? है एक जो बिछड़ गया है। क्या बताऊँ आपको? कब से ये तलाश जारी है? कई बरस हो गए। अब तो कोई 4-5 साल। मैंने बुझी हुई आवाज़ में कहा। डॉक्टर साहब, मैं बहुत कुछ छुपा सकता था, लेकिन यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं छुपाया, इसलिए कि आइंदा पेश आने वाले वाक़यात से आप मुंतशर ना हो जाए और मेरे भाई का इलाज आपके किसी तकद्दुर, बरहमी और तजस्सुस से मुतासिर ना हो जाए। क्या फजूल बात कर रहे हो? मुझे मालूम है। मैंने इनसे कहा कि डॉक्टर के सामने इसका मरीज़ महज इंसान होता है, वो चोर हो या डाकू या अड्डे पाड़े का आदमी, लेकिन डॉक्टर भी इंसान ही है। इंसान नाराज़ भी होता है, उसे गुस्सा भी आता है, दिल में गिरा पड़ जाती है। मैंने साफ साफ कहा कि मैं उसे ये सब कुछ बताने का पाबंद नहीं था। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अस्पताल, मंदिर, मस्जिद नहीं होते, छूत अछूत सभी के लिए दरवाजे खुले होते हैं। मैं यहाँ एक मरीज़ लेके आया था। मरीज़ और डॉक्टर का जो ताल्लुक़ होता है उसे वहीं तक महदूद रहना चाहिए था। डॉक्टर राय ने मेरा बड़ा लिहाज किया। पहली रात मामूल के ख़िलाफ़ वो मेरी दरख्वास्त पर विठल को देखने आ गया। उसने बदतहज़ीबी और गुस्ताखी की हद तक मेरी तुंदो तेज़ बातें बर्दाश्त कर ली थी। उसने अस्पताल के बेहतरीन कमरे में हमें मुंतकिल किया और इलाज हर मुमकिन तवज्जो मरकूज़ रखी। कई और डॉक्टरों को भी मुशावरत में शरीक किया। उसका ये एहसान इतना बड़ा है कि मैं तो इसके सामने सर भी नहीं उठा सकता था। पहले दिन अस्पताल से बाहर जाने के बाद मैं शाम को वापस आया तो इस मुशफ़िक और नेक नफ्स आदमी को ये बता के मैं क्यों परेशान करता कि मैं कैसी दीवारें अबूर करके अस्पताल पहुंच पाया हूँ। जिस रात एंथोनी बेमौत मारा गया, मैं उसे कैसे बताता कि वो लोग तो मुझे ख़त्म करने के दर पे थे, लेकिन अकबर अली खां के सानही के बाद सूरत बदल चुकी है। पुलिस आने वाली होगी। लाइलमी में डॉक्टर राय के जहन में मेरे और विठल के मतलब कैसे कैसे वहम, कैसी कैसी बदगुमानियाँ नमू पा सकती थीं। अब बस मैं समझता हूँ। डॉक्टर राय ने हाथ उठा के मुझे रोक दिया। तुम ठीक कहते हो। लाइलमी में मुझे हैरत भी होती, अजियत भी। पुलिस यकीनन यहाँ पहुँचती होगी। तुमने क्या सोचा है फिर? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा डॉक्टर साहब। मैं क्या कह पाऊँगा? किस तरफ इशारा करूँगा? शायद वो मुझे साथ ले जाए। तो ठीक है, ले जाए, लेकिन फिर यहाँ भाई के पास कौन होगा? कोई तो होना चाहिए उनके साथ। वो तो हम लोग देख लेंगे। डॉक्टर बेपरवाही से बोला। भाई पूछे तो आप क्या बताएंगे? कुछ ना कुछ तो कहना होगा।
وہ نہیں مانیں گے, آپ انہیں نہیں جانتے. وہ بہت سمجھ بوجھ کے آدمی ہیں, بکل ہو جائیں گے. دیکھ لیں گے. ڈاکٹر اس کے سوا کیا بھی کہہ سکتا تھا. میں نے اسے بتایا کہ کل ہی اکبر علی خان کے مشورے سے انہی کے ذریعے کولکتہ تار دیا تھا. ایک نہیں 2 ارجنٹ تار. یہاں کے مشکل حالات دیکھ کے اپنی دسرات کے لیے 1-2 آدمی بلائے تھے. آپ تک تو کسی کو آ جانا چاہیے تھا. کون ہے وہ؟ ڈاکٹر نے چونک کے پوچھا. انہیں بھائی کا خدمتگار سمجھیے. سمجھیے کیا مطلب؟ اس کے لہجے میں ترشی آ گئی. بھائی کے پروردہ ہیں وہ. ان کا تعلق بھی اڈے پاڑے سے ہے. کولکتہ سے آ رہے ہیں وہ. کلکتہ ہی میں تمہارے بھائی کا اڈا ہے؟ کبھی تھا اور ہاں ہے بھی. اڈا تو انہی کے نام سے قائم ہے, میں نے بیچی ہوئی آواز میں کہا. لیکن اب تو عرصے سے وہ وہاں نہیں بیٹھتے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ عرصے سے میرے ساتھ سفر کرتے ہیں. یاد پڑتا ہے تم نے شروع میں کہا تھا کہ تمہارا گھر فیض آباد میں ہے. میں نے غلط نہیں کہا تھا. ہم فیض آباد ہی سے آ رہے ہیں. وہاں سے بھی کسی کو بلایا جا سکتا تھا, لیکن گھر میں اطلاع دینے سے سبھی پریشان ہو جاتے. یہ آنے والے لوگ بھی چاقو باز ہوں گے. آپ کی اور میری طرح اڈے کا ہر آدمی پہلے آدمی ہوتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ غیر ارادی طور پر تن سا گیا. ہاں پہلے آدمی, بات کو چاقو باز. ڈاکٹر رائے ناگواری سے بولا. ٹھیک ہے. اس کے پے در پہ سوالوں سے میری رگیں اینٹھنے لگی تھی, لیکن اس کے ہر سوال کا جواب مجھ پر واجب تھا. کہیں ذرا سا ابہام رہ جانے کی صورت میں اس کے دل میں شک کی گرہ پڑ سکتی تھی. وہ کتنا ہی تردید کرے, ہر ذہین آدمی کا وتیرہ شک ہوتا ہے. وہ تو یوں بھی ایک نکتہ رس اور جزوی شخص تھا. کوئی معمولی آدمی اتنا بڑا اور کامیاب ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. میری دانست میں اب بہت کچھ آئینہ ہو چکا تھا. مجھے اور کسی معزز خوانا لہجے کی بھی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس کے ضرب کا خیال ہر لمحے ملحوظ رکھنا تھا. وہ بار بار کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا. اس دوران میں خود کو اس کے کسی ناروا سوال کے لیے آمادہ کرتا رہتا. کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی ممتحن کے سامنے بیٹھا ہوں, یا عدالت کے کسی جج کے روبرو. اڈے کے کسی استاد سے زور آزمائی کرتے وقت شاید مجھے کسی اتنی کشمکش کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہو جتنی ڈاکٹر رائے کی دھند دور کرنے کے اس مرحلے میں نازکی کا خیال رکھنا پڑ رہا تھا. ہر لمحے مجھے خود کو ٹوکنا پڑتا کہ وہ بٹھل کا معالج ہے اور بٹھل ابھی بستر پر ہے. ڈاکٹر رائے اس اسپتال کا نگراں ہے. اسپتال کے روایتی پرسکون ماحول میں ہماری آمد کے بعد مسلسل کوئی نہ کوئی انہونی ہوتی رہی ہے. اسپتال میں آدھی رات کے بعد مسلح آدمیوں کی یلغار, اینتھونی کی موت, پولیس کی آمد اور اب اکبر علی خان کی ہلاکت کے بعد ڈاکٹر رائے میرے اور بٹھل کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر سکتا ہے. تم نے کہا ہے پولیس تمہیں ساتھ بھی لے جا سکتی ہے, مگر کیوں؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا. یہاں میں اجنبی ہوں اور بہت بے سہارا بھی. وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پولیس کو اپنے اختیار سے سوا کرنے کی عادت ہوتی ہے. ادھر میدا کے اڈے سے آئے دن کے واسطے کی مروت میں مجھ سے پولیس کا رویہ واندانہ بھی ہو سکتا ہے. پولیس کے جانے کتنے لوگ میدا کے اڈے کا نمک بھی کھائے ہوئے ہوں گے. اس پیچیدہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے تم نے بھی کچھ غور کیا ہوگا. ڈاکٹر کی آواز اکڑی ہوئی سی تھی. کیا بتاؤں؟ میں نے بے ربطی سے کہا. شاید مجھے ایک وکیل کی ضرورت پڑے. وکیلوں کا یہی کام ہوتا ہے. آپ شہر کے کسی بہت بڑے وکیل کو ضرور جانتے ہوں گے. اطمینان رکھیے, کتنا ہی مہنگا وکیل ہو میں اس کی فیس ادا کر سکتا ہوں. اور واضح رہے یہ اڈے پاڑے کا پیسہ نہیں ہے. روپے پیسے کی انہیں ایسی طلب نہیں ہوتی جتنی زور اور اپنی ساکھ کی. تم اڈے بازو کی وکالت کر رہے ہو مجھ سے؟ ڈاکٹر رائے جھلا کر بولا. میں آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہوں. آپ نے اتنی باتیں جانی ہیں تو یہ بات بھی آپ پر صاف ہو جائے. وہ بڑبڑاتے ہوئے یکایک کرسی سے اٹھ گیا. ایک بات کہنی تھی آپ سے. اس کے کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے رکی آواز میں کہا. کرسی سے اٹھ کے اس نے اپنا لباس چھٹکا, شکنیں درست کی اور کسی قدر بے اتنائی سے بولا. بولو کیا بات ہے؟ میں اکبر علی خان کے گھر جانا چاہتا ہوں. میں نے نظریں جھکا کے کہا. کیا؟ اس کا جسم اکڑ گیا. تم وہاں جانا چاہتے ہو؟ مجھے جانا چاہیے. 2-3 دن میں صحیح. ان سے جو ایک غیر معمولی ربط خاطر ہو گیا تھا تو مجھے وہاں جانا چاہیے. تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ درشتی سے بولا. میری وجہ سے وہ اپنی جان سے گئے. ان کا ایک آباد گھر تھا, میری وجہ سے اجڑ گیا. اس دن نہ میں ان کے گھر میں داخل ہوتا, نہ ان کے گھر پر یہ بربادی. میرے حال پر ترس کھا کے وہ مجھ سے اتنے قریب ہو گئے تھے, مجھے اپنا کوئی بہت قریبی عزیز بھائی سمجھنے لگے تھے. اور اب مجھے بھی یہی محسوس ہوتا تھا. کل رات اپنے گھر بیوی بچوں کی نہایت ذاتی باتیں کر رہے تھے. ان کی بیٹی کے لیے کسی نواب کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا. وہ بہت کشمکش میں تھے, صاف انکار بھی نہیں کر پا رہے تھے. مجھ سے پوچھتے تھے کہ وہ کیا کریں, کس طرح نواب کو مطمئن کریں. وہ اپنی بیوی کے شیدائی تھے, بڑے احترام بہت محبت سے اور بیوی کا ذکر کرتے تھے. لگتا تھا دونوں یکجان ہیں. وہ تو خود سراپا احترام, سراپا سرتاپا محبت تھے. میں نے اس گھر کی ایک جھلک ہی دیکھی تھی. کیسا مثالی گھر تھا, مثالی لوگ وہاں بستے تھے. میری آواز میرے قابو میں نہیں رہی. آنکھوں میں جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو اور سینہ جیسے ابھی پھٹ جائے گا. میں نے اپنا ماتھا جکڑ لیا. میرا جی چاہا کہ دیوار سے سر پھوڑ لوں.
ओ नहीं नहीं, डॉक्टर ने मेरा बाजू पकड़ लिया। अपने आप को संभालो। वो मेरी कमर थपकने लगा। मेरी आंखों से आंसू जारी थे। उसने दोबारा मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गया। तुम वहाँ नहीं जा सकते, उसने हतमी आवाज़ में कहा। नहीं जाऊँगा तो मेरे सीने में खुद को किस तरह। मेरी आवाज़ आंसुओं में बह गई। यूँ वो वापस नहीं आ जाएंगे। मैं उनके जनाजे में भी शरीक ना हूँ, मैंने बिलखती आवाज़ में कहा। मैं जानता हूँ उनके बीवी बच्चों के सामने किस तरह जा पाऊँगा, किस मुँह से उनके सामने जाऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हें देख के उनका गम और बढ़ जाएगा। डॉक्टर आह भर के बोला। अकबर अली खां मुझे भी अच्छे लगते थे। वो एक उम्दा आदमी थे। उनसे मिल के खुशी हुई थी। सोचा था ज़रा तुम्हारे भाई के इलाज से फ़राग़त हो जाए तो उनसे नशिस्तें हों। बताइए डॉक्टर साहब, उनका क्या कसूर था? उन्होंने किसी को क्या ज़रर पहुंचाया था? उन्होंने कितने नादिर, कितने बड़े आदमी को मार दिया? किस बात पर? इस बात पर कि जुर्रत करके वो मेरे साथ मैदा के अड्डे पर गए थे और मेरी दिलबस्तगी के लिए यहाँ अस्पताल में सुबह शाम आना उन्होंने मामूल बना लिया था। मैं भी ये समझने से कासिर हूँ। डॉक्टर राय अफसरदगी से बोला। वो लोग दीवाने हो गए थे क्या? वकील साहब से उन्हें क्या गरज थी? कैसे जालिम और दरिंदे लोग हैं ये। मैंने ये उससे नहीं कहा कि अपना हाल क्या बताऊँ। मेरा खून बहुत खोलता है। अकबर अली खां का ख्याल आता है तो जिसम में आग सी लगने लगती है। एक हुड़क सी उठती है कि मैदा के ठिकाने पे जाके इसके अड्डे को आग लगा दूं। इसके जो भी आदमी सामने नजर आए उनके सीने में चाकू भोंक दूं। तुम कहते हो अड्डे की कुर्सी पर बैठा आदमी चाकू और बल ही में नहीं, बर्दाश्त सूझबूझ में भी दूसरों से लाजमन बरतर होता है। ये तो निहायत कमअक्ली की बात है। ये तो ओछापन है, परले दर्जे की ज़लालत है कि तुम निशाने पर ना आ सके तो उन्होंने एक बेगुनाह को ख़त्म कर दिया। मैदा क्या जताना चाहता है? तुम्हें मुश्तल करना, खौफज़दा करना? क्या वो इतना भी नहीं समझता कि साफ साफ इस पर निगाह जाएगी? इस तरह वो क्या हासिल करना चाहता है? डॉक्टर राय भिनभिनाती आवाज़ में बोला। आप ठीक कहते हैं, मगर शायद ये मैदा नहीं, इसे इतना दिमाग नहीं होना चाहिए। फिर कौन? तुम कहना क्या चाहते हो? मैदा ने आसानी से मुझे अड्डे से जाने दिया था। ये बात उन लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी जो डाक खाने वाली गली में ज़ख्मी हो जाने और बात को मर जाने वाले धनवा नामी आदमी की नहायत वफादार और जानिसार साथी थे। वो मैदा के अड्डे से मुनहरफ आदमी मालूम होते हैं। उन्होंने अड्डे के उस्ताद का इख्तियार अपने हाथ में ले लिया। हो सकता है अस्पताल में आने वाले हमलावर मैदा के बेचे हुए हों, लेकिन ये तो कोई दूसरे ही लोग हो सकते हैं। कोई भी हो। डॉक्टर फहमाइशी लहजे में बोला। मेरी बात सुनो। तुमने इतना कुछ बता के मुझ पर एतमाद किया और मैंने इस पर यकीन किया है। तुम अपने आप से अब कोई फ़ैसला नहीं करोगे। मेरे मशवरे और इल्म में लाए बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे, समझे? आदमी अपने आप को भी तो जवाब देता है डॉक्टर साहब, मैंने यसीयत से कहा। मेरे वहाँ ना जाने से अकबर अली खां के घर वाले क्या सोचेंगे? मेरे मुतालिक क्या राय कायम करेंगे? उन पर अकबर अली खां के सानी है, इससे बड़ी क़यामत और क्या गुजर सकती है? और हाँ, तुम अपने आने वाले भाइयों को भी मना कर दोगे कि वो तुम्हारी तरफ से कोई नादानी नहीं करेंगे। वो कुर्सी से दोबारा उठ गया और चलते चलते रुक गया। मेरा ख्याल है तुमसे कहने की ज़रूरत नहीं कि ये कितना संगीन वाक़या है। शहर के एक नहायत मुअज़्ज़ज़ मशहूर एक बड़े आदमी का खून हो गया। तुम्हारी ज़रा सी गलती, मुश्तल हरकत से बात कितनी बिगड़ सकती है। इस मामले की तफ्तीश आम सतह पर नहीं होगी। वकीलों की बरादरी, शहर के मुअज़्ज़ज़ीन, अकबर अली खां का वसी और बासर हल्का अहबाब सभी तशवीश ज़ाहिर करेंगे और तुम्हारा नाम लाज़मन आएगा। इसने मुझसे फिर कोई बात नहीं की, कमरे से निकल गया। बारहदरी में इस कमरे में तैनात डॉक्टर और नर्स इसकी वापसी के मंतज़र थे। डॉक्टर ने रस्मी अंदाज में इनसे माजरत की और बिठल के कमरे तक मेरे साथ आया। सिमरन भी ड्यूटी पर आ गई थी और एमी अभी तक मौजूद थी। दोनों सरासीमा सी बिठल के कमरे के बाहर हमारी जानिब नज़रें मरकूज़ किए खड़ी थी। हमें आता देख के सटपट आ गई। डॉक्टर राय ने करीब जाके एमी को इशारे से पास बुलाया और सरगोशियाना कुछ बातें की और तेज़ कदमों से चलता हुआ राहदरी के मोड़ से उछल हो गया। डॉक्टर के जाते ही वो दोनों लपकती हुई मेरे पास आ गई। यकीनन तुमने इनसे कोई बात छुपाई नहीं होगी, एमी वसुक से बोली। मैंने सर हिला के तायद की। तुमने बेहतर किया, तुम्हें यही करना चाहिए था, वो तायदी लहजे में बोली। वो बहुत खुले दिमाग के आदमी है। मैंने कोई तबसरा नहीं किया। हाँ, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे सेवरन आ गई होगी। तुम कहो तो रुक जाऊँ, मैं तुम्हारी राह तक रही थी, एमी दिलदोजी से बोली। घर में मेरा जी नहीं लगेगा, तुम्हारी फिक्र रहेगी। नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक रहूँगा। मैं इस कमरे में कैद रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मेरी आवाज़ बहक रही थी। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये वक्त गुजर जाएगा, एमी मुझे दिलासे देने लगी। ये क्या हो गया? मैंने आके एमी से सुना तो यकीन नहीं आया। क्या वाकई इतना शानदार आदमी हमारे दरमियान नहीं रहा? सेवरन ने धड़कती आवाज़ में पूछा। मेरी खामोशी पर वो भी चुप हो गई। कमरे में आके बेख्तियार मेरे कदम बिठल के बिस्तर की जानिब उठे और सीने के मतवाज़िन उतार चढ़ाव से लगता था कि वो पुरसकून नींद में। चेहरे पर भी ताजगी फैली हुई थी। मैं दबे कदमों इसके पास से हटाया और सोफे पे आके बैठ गया और मेरा जिस्म बिखर सा गया। चंद लम्हों बाद सिमरन भी मेरे नज़दीक बैठ गई।
कमरे में खामोशी तारी थी। सेवरन देर तक बुत बनी रही। मैंने भी उसे कोई कलाम नहीं किया। मेरे पास कहने के लिए था भी क्या। गुज़िश्ता 2-1 दिन में वो अकबर अली खां से खासी मानूस हो गई थी। कल उसने उनके घर से आए हुए तोशे का खाना खाया था और कहती थी उसने आज तक इतना नफीस और लजीज खाना नहीं खाया। अकबर अली खां इसकी तारीफ से बहुत खुश हुए थे। वो ज़रा सी बात पर खुश होने वाले आदमी थे। उन्होंने बिठल की सेहतयाबी के बाद सेवरन को घर आने की दावत दी थी। कहते हैं आदमी का वक्त आ गया था, लेकिन ऐसे तो वक्त नहीं आना चाहिए था। किसी बीमार माजूर सन रसीदा की मौत का कोई जवाब तो होता है। आदमी चुपके से यूं अचानक गायब हो जाए तो कोई क्या कहे। सेवरन भी क्या कह पाती, और मैं कौन सा अकबर अली खां का रिश्तेदार, उनके ख़ानदान का आदमी था। अकबर अली खां से मेरी शनासाई सेवरन से 1 दिन पहले की थी, बल्कि 1 पहर पहले की। सेवरन से कुछ कहते न बना के लफ्ज़ तो कभी बहुत हकीर और बेमाया हो जाते हैं। वो खिसक के मुझसे और करीब हो गई। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख के मुझसे गमगुसारी का इजहार करना चाहा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें भरी हुई थी। सेवरन ने अपने आलम इज़्तिराब में मेरे हाथ पर जोर दिया तो मेरी आंखें भी उमड़ आईं। आदमी के पास कुछ नहीं होता तो आंसू ही सहारा, आंसू ही सब्र बन जाते हैं। क्या हो गया ये? वो सिसकते हुए जैसे अपने आप से बोली। मैंने खुद को बहुत रोका, लेकिन सेवरन की सिसकियों ने मुझे भी मुतलातम कर दिया। मैं भी हुड़कने लगा। मसीहाई इसका शौहर थी। इस बेपनाह मुशफ़िक़ और मेहरबान लड़की ने मेरा सर अपने शाने पर रख लिया। मेरी तो हिचकियाँ बंद गई। कभी अपने किसी बहुत अजीज़ और मोहतरम, अपने किसी हम नफ्स व हमदम के चले जाने पर हैरान और हलकान हो जाते हैं, लेकिन इस आदमी की वीरानी का कौन अंदाज़ा करे। उस आदमी का दुख कौन जाने जो अपने अजीज़ और मोहतरम के खून का बार अपनी गर्दन पर महसूस करता हो। सेवरन को क्या मालूम था कि हर लम्हे यही एहसास मेरा सीना दबोचता खसोड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाके खुद को छुपाऊं। मैं कैसा बदनसीब बेबस आदमी हूँ। मेरा साया ही नजस है। मैं जिंदा रहने पर क्यों मुसर हूँ। सेवरन मेरे बालों में उंगलियां फेर के मुझसे इगागत ज़ाहिर करने लगी। आईना मुकाबिल ना हो तो भी हम वक्त अपनी सूरत आदमी के सामने रहती है। मैं अपना चेहरा ही देखना नहीं चाहता था। आदमी का अपना वजूद का भी इस पर बहुत बोझ होता है। सेवरन एक नर्म और नाजुक लड़की किसी सतून, किसी दीवार के मानित मुझे सहारा देने की कोशिश कर रही थी। मेरे सर में उसकी मंडलाती उंगलियां मुझसे अपने दुख का इजहार कर रही थी। उसका गुदाज आफरी पहलू उसकी बेकरारी का मजहर था कि वो मेरे हाल से वाकिफ़ है और मुझे पनाह में लेना चाहती है। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। दिलदही से भी तो आंसुओं की नमो होती है। मुझे नहीं मालूम कब वो मेरे पास से उठी। मुझे तो अपनी सुध बुध ही नहीं रही थी। जाने कब उसने मेरे शाने पर टेहोका दिया तो मैंने देखा वो मेरे सामने खड़ी है। उसके हाथ में गिलास है और रुमाल। उसने आंखें मीच के गिलास और रुमाल मेरी तरफ बढ़ाए। तब मुझे अपनी तवानाई और फ्रोमाइगी का शिद्दत से एहसास और नदामत का गलबा हुआ। आंसुओं का भी बड़ा फिशार होता है। बह जाए तो जिस्म हल्का हो जाता है, लेकिन आंसू तलाफी नहीं कर पाते। सेवरन दोबारा मेरे पास आके बैठ गई और चुप रही। फिर जैसे खुद को मुजतमा करके धीमी आवाज़ में उसने सवाल किया। ये कांटा उसके बदन में चुभ रहा होगा। कहने लगी, अब क्या होगा? मैंने इस्तफहामी नज़रों से उसको देखा। क्या होगा? फिर मुझे ख्याल आया वो आने वाले वक्त से हरासा है। मैंने बज़ाहिर बेपरवाही से कहा, जो होना है वो तो होके रहेगा, तुम उनसे ज़्यादा बात मत करना। उसने दबी आवाज़ में मशवरा दिया। किससे? मैंने ताजुब से पूछा। पुलिस से। एमी कह रही थी पुलिस अस्पताल आने वाली है। ये पुलिस वाले बाल की खाल निकालते हैं और किसी का ख्याल नहीं करते। वो तुम्हें तंग कर सकते हैं। वो अपनी कार्रवाई तो करेंगे ही। इतने बड़े वाक़े के बाद क्या वो घर में बैठेंगे? मगर तुम्हारा कसूर क्या है? अकबर अली खां से ताल्लुक़ के खातिर का। ऐसा ना होता तो वो क्यों ख़त्म हो जाते? सेवरन दसदीदा नज़रों से मुझे देखा कि फिर ठुटकी हुई आवाज़ में बोली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे तसल्ली देना चाही। खुदाबंद सब ठीक ही हो। उस सीने पर सुलेब का निशान बनाते हुए बोली, खुदाबंद सच का साथ देता है। वो अभी ये कह ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सेवरन घबरा के उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ लपकी। अस्पताल का एक मुलाजिम पुलिस की आमद और मेरी तलबी की इतला देने आया था। मैंने समझ लिया था। सेवरन ने सहमे सहमे अंदाज में हर कार्य का पैगाम मुझे मुंतकिल किया। सोफे से उठ के मैंने एक नज़र बिठल के बिस्तर के पास जाके देखा। सेवरन से तशफ़ी के कलमात कहता हुआ मैं कमरे से निकल जाना चाहता था कि उसने मुझे रोक लिया और गुसलखाने की तरफ इशारा किया। मेरा हाल वाकई ठीक नहीं था। उसका एहसास मुझे गुसलखाने जाके हुआ। मुँह हाथ धो के और बाल दुरुस्त करके मैं बाहर आया तो सेवरन मुझे रुखसत करने के लिए दरवाजे के पास खड़ी थी। सर से पाँव तक मेरा जायज़ा लेते हुए उसने मेरे कुर्ते का दामन खींच के शिकने दुरुस्त की, नीचे के 3-4 बटन लगा के मेरी खुली बास्कट बंद की और फीकी मुस्कुराहट से हाथ पिला के मुझे कमरे से जाने की इजाज़त दी। बाहर मुलाजिम मुंतज़र था। चंद कदम का फासला तय करके वो राहदरी में दाएं मुड़ गया। राहदरी के अहतमाम पर सब्ज़ार का वसी खुला हिस्सा था और मुख्तलिफ अमराज के वार्ड शुरू हो जाते थे। 1-2 की टुकड़ियों में जगह जगह सिपाही मौजूद थे। उनमें बेशतर सादा लिबास में थे। सादा लिबास में भी पुलिस का आदमी अपने ख़ास अंदाज़ और एतबार, छप ढप, बालों वगैरह से आसानी से पहचाना जाता है।
पुलिस से जिसका वास्ता पड़ता रहा हो, इससे तो किसी बहरूप ही में छुप सकता है। मुतअद्दिद मकामात पर तैनात पुलिस हमें सामने से गुजरता देख के ज़ेरो ज़बर हो जाते, लेकिन किसी ने अस्पताल की वर्दी में मलबूस मुलाजिम की वजह से कोई तारुज़ नहीं किया। इनकी मशकूक नज़रों के हिसार में हम मरकज़ी इमारत में दाखिल हो गए। इमारत के बड़े दरवाजे पर भी 5-6 सिपाही मौजूद थे। उन्होंने जैसे मुझे पहचान लिया हो। ज़रूर मैं ही उन्हें मतलूब हूँ। मुझे आता देख के उनके ढुलके हुए जिस्मों में एक साथ जैसे किसी ने सुइयाँ चिबो दी हों। सभी बेचैन से हो गए। निगाहों में उन्होंने एक दूसरे से तस्दीक चाही, लेकिन मेरा इनका सामना लम्हाती था। मेरा राहबर अस्पताल का मुलाजिम इमारत के बड़े दरवाजे से चंद कदम बाद दाएं जानिब गली ऐसी जगह में आ गया। सामने दरवाजे पर सादा लिबास में इस्तादा शख्स का ताल्लुक भी यकीनन पुलिस से होना चाहिए था। मुलाजिम ने मुझे इसके सुपुर्द किया और वहीं से लौट गया। मुझे बाहर ठहरा के दरबानी खिदमत पर मामूर पुलिस के आदमी ने अंदर जाके मेरी आमद की इतला दी होगी। जाते जाते उसने दरवाज़ा बंद करने की एहतियात भी की और फ़ौरन ही वापस आके उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो अस्पताल के खास मुलाकातियों का कमरा मालूम होता था। ना इतना बड़ा ना ऐसा छोटा, बड़े स्टेशनों के दर्जा अव्वल मुसाफिरों की इंतज़ारगाह के मानिंद सजा हुआ और साफ़ सुथरा। दीवारों के साथ लगे शाहाना तर्ज के सोफ़ों के बीच शीशे की छोटी मेज़ें, कमरे की कुशादा बस्ती जगह घेरती हुई बड़ी सी चकोर मेज़, छत खासी ऊंची, दीवारों पर न्याना रंग रोगन, खिड़कियों पर हल्के नीले रंग के रेशमी पर्दे, छत से मुल्हिक रोशनदान निस्फ खुले हुए। छत से लटका हुआ पंखा तेज़ी से घूम रहा था। दरवाजे के ऐन मुकाबिल सोफ़ों पर ताज़ा वर्दियों में 3 पुलिस ऑफिसर बैठे थे। तीनों कमोबेश गंदमी रंगत के थे। 2 अधेड़, एक पुख्ताकार नौजवान। तीनों के कामत में थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। निस्बतन बड़ी उम्र के शख्स के चेहरे पर बदबारी झलक रही थी और वही उनका बड़ा अफसर लगता था। इसकी छोटी आंखें अंदर धंसी हुई चमकीली थीं। भवों पर सफ़ेद बाल गालिब थे। हालांकि दरबार ने उन्हें मुतला कर दिया था, लेकिन मेरी आमद पर तीनों संभल से गए। मैंने सलाम के लिए हाथ उठाया और इनसे इजाज़त लिए बगैर करीब के सोफे पर बैठ गया। चंद लम्हों तक उनकी नज़रें मुझ पर भटकती रहीं। फिर अधेड़ ऑफिसर ने अपने बड़े ऑफिसर की तरफ इजाज़त तलब अंदाज से देखते हुए मुझसे मेरे नाम की तौसीक चाही। मैंने इकरार में सर हिला दिया। तुमसे हम इंक्वायरी करता है। अधेड़ ऑफिसर ने हिंदुस्तानी में पहल की। ठीक बताओ तो हम दोनों के वास्ते ठीक होगा। उसके लहजे की दुरुस्ती कबलज़ वक़्त थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। रात को तुम इधर अस्पताल ही में थे जब वकील अकबर अली खान साहब का मर्डर हुआ। वकील साहब कितने बजे तुम्हारे पास से निकले थे? 1:30-2 बजे के दरमियान, मैंने खिंची हुई आवाज़ में जवाब दिया। तुमने इनको तांगे पर छोड़ा और लौट के कमरे में आ गए, ऐसा ही हुआ? जी हाँ। तांगे पर इनको छोड़ने और वापस कमरे तलक आने में तुमको कितना टाइम लगा? रास्ते का वक़्त, मैंने सादगी से कहा। घर जाने में इतनी देर काहे लगाई? वकील साहब ने। हैया क्या कर रहे थे? इस बार नौजवान ऑफिसर ने बिफरे लहजे में पूछा। बातें कर रहे थे हम, वक्त का कुछ ख्याल नहीं रहा। चलते वक्त मैंने इनसे कहा अभी कि रात बहुत हो गई है, मैं इनके साथ चलता हूँ, इसी तांगे से वापस आ जाऊँगा। उन्होंने हंस के मना कर दिया। का बातें कर रहे थे वो? यही मेरी अपने घर की, दुनिया भर की। कब से तुम इनको जानो हो? 2-3 दिन से, यहाँ आने के बाद से। 2-3 दिन से? अधेड़ ऑफिसर हैरानी से बोला। उसने वही सवाल किया जो डॉक्टर राय ने किया था कि इतनी जल्द वो किस तरह मुझसे घुल मिल गए कि घर की बातों में शरीक करने लगे। मैंने जवाब में वही कहा जो डॉक्टर से कहा था कि एक दूसरे के करीब आने के लिए किसी मुद्दत की शर्त आयद नहीं होती। किधर, कैसे तुम्हारी इनकी पहली बार भेंट हुई? ये एक लंबी कहानी है, मैंने किसी कदर बेरुखी से कहा। आपका वक्त ज़ाया होगा। बस इत्तफाक से मेरी उनकी मुलाकात हुई। हमको बता दो, हम इसी कारण इधर आए हैं। बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि उलझ सकते हैं। किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो इधर उधर मत भटकिए। तुम हमको एडवाइस ना ही करो तो अच्छा है। मैंने फ़ौरन कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। बिटल कहता था जवाब में तेज़ी हर वक्त मुनासिब नहीं होती। उसके बकौल सामने मौजूद ज़्यादा पुलिस ऑफिसर यकसा मिजाज के नहीं होते। चेहरों की तरह उनकी खसलतें भी मुख्तलिफ होती हैं। एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए वो उल्टे सीधे सवालात भी करने लगते हैं। शक की बुनियाद पर वो मफरूज़े कायम करते हैं और शक की कोई हद नहीं होती। कोई शक उनके दिल में बैठ जाए तो मुश्किल ही से निकलता है। ज़ाहिर है इनमें नहायत ज़हीन, तालीम याफ्ता और तजुर्बेकार भी हो सकते हैं। वो होशो हवास खो देने की हद तक अपने मुखातिब को लाजवाब और बरहम कर सकते हैं। हमेशा दुश्मन की तरह पेश आते हैं और मुश्किल से शिकस्त कबूल करते हैं। बहुत कुछ दलील पर मुनहसर है। दलील उन्हें गुस्सा भी दिलाती है, जिच भी करती है और मुतासिर भी। अपनी दलीलें आहिस्ता आहिस्ता उन पर अफशा करनी चाहिए। दलीलें तवाना ना हो या दलील ही ना हो तो हुज्जत भी नहीं करनी चाहिए। चरब ज़ुबानी उन्हें नागवार गुजरती है। उनके मुनासिब की रियायत वही बा हर हाल वाजिब है।
اونچی آواز میں بات کرنے سے پہلے ان کے تیور کا تخمینہ کر لینا چاہیے۔ ایک بات صاف سن لیجیے صاحب، میں نے تمام تر احتیاط سے نسبتاً اٹھی ہوئی آواز میں کہا۔ میرے پاس جو کچھ ہے آپ سے کہہ دیتا ہوں، ہو سکے تو اس پر دھیان دیجیے اور پہلے اس زاویے سے سوچیے، آپ حاکم ہیں، بات کو آپ کی مرضی ہے، جس طرف جس انداز سے چاہیں کوچ کیجیے۔ تینوں کے چہرے تمتمانے لگے۔ نوجوان آفیسر زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑے آفیسر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، کا کہنا چاہو ہو تم؟ اس کی آواز بھاری تھی اور منصب کی تمکنت سے آسودہ۔ یہی ایک طور مجھے ٹھیک لگا کہ پٹنہ شہر میں آنے کے بعد پیش آنے والے واقعات بے کم و کاست بیان کر دوں، لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ بابر کرا دینا بھی ضروری تھا۔ میں نے کہا، جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو یہی ہوگا، فی الحال آپ اسی پر تکیہ یا اسی پر یقین کریں۔ بات کو کسی وضاحت کے لیے سوال پیدا ہوتے ہیں تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ کے اطمینان کے لیے جتنا کچھ بھی جانتا اور سمجھتا ہوں جواب دینے کی کوشش کروں گا، لیکن میری بات ختم ہونے سے پہلے کوئی سوال مت کیجیے گا، یہ میری گزارش ہے۔ مجھے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس ہے کہ آپ پولیس کے آدمی اور سنجیدگی سے ایک سنگین واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں، بدقسمتی سے جس میں میرا ذکر، میرا نام بھی آتا ہے۔ مجھے معلوم ہے میری حیثیت بھی آپ کی نظروں میں مشکوک قرار پاتی ہے اور میرے خیال میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میں دہراتا ہوں، میں آپ سے امکان بھر تعاون کروں گا، یا یوں کہیے کہ آپ کی مدد کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ کسی کارنامے کے چکر میں پڑیں گے آپ تو شاید کچھ ہاتھ نہ آئے۔ تم ہماری مدد کرو گے؟ نوجوان آفیسر کی زبان غصے میں ڈگمگا گئی۔ تم ہم کو کوئی بہت چالو پروفیشنل ٹائپ مجرم لگو ہو تو ٹھیک ہے، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ پھر آپ بھی کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ایک بات دماغ میں رکھ لو صاحب، میں آپ کے ہر سوال کے جواب کا پابند نہیں ہوں۔ آپ مجھے مجرم سمجھتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر دیر کاہے کی؟ مجھے یہاں سے سیدھے حوالات لے جائیے۔ میں نے ڈاکٹر رائے سے درخواست کی ہے کہ وہ شہر کے کسی اچھے وکیل کا بندوبست کر دیں، پھر وہی آپ سے بات کرے گا۔ تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ طے کر کے کچھ ٹھان کے نہیں آئے ہیں، انہیں کسی نتیجے پر پہنچنے، کوئی رائے قائم کرنے کا موقع ہی کہاں ملا ہوگا۔ اکبر علی خان کے ملازم کے بقول صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے نمازیوں نے ان کی خون آلود لاش جھاڑیوں میں پڑی دیکھی تھی۔ اس وقت سارے محلے میں کوہرام مچ گیا ہوگا۔ پولیس تک بات پہنچنے، پولیس کے آنے اور ابتدائی تفتیش میں کچھ وقت تو ضرور لگنا چاہیے۔ کچھ تگ و دو کے بعد انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اکبر علی خان رات گئے اپنے کسی نئے دوست کے پاس سے گھر واپس آ رہے تھے۔ یہ نیا دوست کون تھا؟ اس کا سراغ بھی ان کے لیے معمہ نہ ہوگا۔ اسپتال آ کے انہوں نے صدر دروازے پر رات کی ڈیوٹی کے دربان اور اونگتے ہوئے سپاہیوں سے بات کی ہوگی، اور ممکن ہے انہوں نے اس تانگے والے کو بھی ڈھونڈ لیا ہو جو اکبر علی خان کو اسپتال سے لے کے آتا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ڈاکٹر رائے سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہو۔ اتنی کم مدت میں ان کی معلومات خاصی خام اور ناتمام ہونی چاہیے۔ یہ ساری صورتحال اور ان کی تذبذب منتشر حالت دیکھ کے ہی میں نے اپنی آواز اور لہجے میں جرأت کی جسارت کی تھی، اور مجھے احساس تھا کچھ متجاوز نہ ہو جائے۔ وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بھی اپنی وکالت، اپنی نجات کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ بستر پر پڑا بے حرکت، بے دست و پا جیسا بٹھل بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس شہر میں میری تنہائی اور اجنبیت سارے فاصلے مٹا کے ایک شخص قریب آیا تھا اور اسے بڑا سہارا ہو گیا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ پولیس آفیسر کے پہلو میں بیٹھے ادھیڑ آفیسر نے میری سچ بیانی یا وگوئی پر محمول کی۔ میں نے کوئی ایسی ناروا نازیبہ بات بھی نہیں کی تھی۔ جانے کیوں وہ بھڑک اٹھا، شاید پہلی بار اس کا مجھ ایسے کسی ملزم یا مجرم سے سامنا ہوا تھا۔ اس نے بگڑے ہوئے منہ سے پوچھا، تو تم کون ہو؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں کون ہوں، اور مجھ اجنبی کو اس شہر میں آ کے کن حالات سے واسطہ پڑا۔ میں نے جبری تحمل سے کہا، لیکن لگتا ہے آپ کی نظروں میں اپنی حیثیت جان کے ہی مجھے زبان کھولنی چاہیے۔ مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہے، تو کھلے دل سے اجازت دو۔ نہیں دینا چاہتے ہو تو میں نے پہلے ہی صاف کہا ہے، آپ اپنی کارروائی کرو۔ میں جانتا ہوں یہ حق مجھے کہاں سے مل سکتا ہے، آپ پر دنیا ختم نہیں ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، بڑے افیسر نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، تم بولو کیا بولنا ہے۔ مزید کسی حجت کا متحمل نہیں تھا، میں نے اپنی آواز دھیمی رکھی۔ ہم آگے جا رہے تھے، اکبر پور اسٹیشن پر انجن خراب ہو گیا، ریل گاڑی کے جھٹکوں کی وجہ سے سوئے ہوئے بھائی کے سر میں اندرونی چوٹ آ گئی۔ میں نے شروع سے آخر تک متصراً ساری رودات ان کے گوش گزار کر دی۔ درمیان میں کئی بار ادھیڑ اور نوجوان آفیسر نے مداخلت کرنا چاہی، لیکن بڑے آفیسر کی طرف دیکھ کے تل ملا کے رہ گئے۔ میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی تھی، صرف اکبر علی خان کے گھر میں چاقو کے زور پر داخل ہونے کے واقعے سے اجتناب کیا تھا۔ میرے بیان میں بتدریج ان کی بڑھتی دلچسپی اور حیرت کا اظہار ان کی آنکھوں کی چمک اور چہروں کے بدلتے رنگوں سے ہوتا رہا تھا۔ اتنا کچھ جان کے ان کے ذہنوں میں اٹھتے ہوئے سوالات کا مجھے اندازہ تھا، انہیں بھی وہی صراحتیں مطلوب ہونی چاہیے تھی جو کچھ دیر پہلے ڈاکٹر رائے کو ہوئی تھی۔ گو میں خود ہی ان کی الجھنیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ پھر میرے چپ ہو جانے پر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا کیے۔ پھر ادھیڑ آفیسر نے اسی سوال کی تکرار کی جو ڈاکٹر رائے نے کیا تھا کہ کیا میں ہمیشہ اپنی جیب میں چاقو رکھتا ہوں؟
डॉक्टर राय की बात और थी, इन लोगों का ताल्लुक पुलिस से था। मैंने मोहतात लहजे में कहा, किसी अनहोने वाक़े से निपटने के लिए चाकू जेब में रखना हमारी रीत है, चाहे बरसों इसे खोलने की नौबत ना आए। यह के बाद दीगरे वो तरह तरह के सवालात की निश्तरजनी करते रहे। डॉक्टर राय से कुछ ज़्यादा ही ये दूसरा मरहला ज़्यादा अजियतनाक था। मैं जवाबदही का अज़ाब सहता रहा कि आने वाले वक्त की तंगियों कुशादगी अब उन्हीं पर मुनहसर थी। बहुत देर हो गई थी, मेरे दस्तों बाजू टूटने से लगे थे। कभी जी में आता था उन्हें झिड़क दूं कि मेरी क्या ख़ता है, वो मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, मैंने क्या कसूर किया जो मुझे उनके सामने सर झुकाए मुजरिमों के मानित बैठना पड़ रहा है। एक रुकता तो दूसरा शुरू हो जाता था। उनके सवालों का सिलसिला जारी था कि सोफ़ों के दरमियान बगली दरवाज़ा खुलने की चिचराहट हुई और डॉक्टर राय ने मुदार हुआ। उसे देखकर मुझे सुकून मिला। वो तीनों उठ खड़े हुए, मैं भी खड़ा हो गया। डॉक्टर राय ने पुरतकल्लुफ़ अंदाज में इनसे बैठ जाने की गुजारिश की और ज़ाहरी शस्तगी और शगुफ्तगी से अंग्रेज़ी में बोला, मैं मुखल तो नहीं हुआ? नहीं 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 डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? खुशामदीद। तीनों अफसरों ने तपाका इजहार किया। कैसे साहिबान? कहिए साहिबान, आपके मसाइल कुछ हल हुए? डॉक्टर ने पुरुमीद लहजे में पूछा। जी डॉक्टर, बड़े ऑफिसर ने हिचकिचाते हुए कहा, हम यही कर रहे थे, कुछ समझने की कोशिश। यकीनन सारी बात से आप आगाह हो गए होंगे। जी डॉक्टर साहब, हमने पूरी तवज्जो से हर बात सुनी है। ये कैसी अफसोसनाक और हैरतनाक सूरत हाल है। डॉक्टर राय ने उदासी से कहा। जी डॉक्टर साहब, बड़े ऑफिसर की आवाज़ भारी हो गई। वाकई? क्या नतीजा ख़ज़ किया आपने? डॉक्टर ने फीकी मुस्कुराहट से पूछा। अभी यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ा ऑफिसर संजीदगी से बोला। क्या मतलब? डॉक्टर राय ने चौंक के पूछा। ये एक तरफा रुदात है। ये एक तरफा रुदात है। बड़े अफसर का लहजा बज़ाहिर मज़ाख़वाना था, लेकिन तुंदी तुर्शी का हामिल था। कहने लगा, इस नौजवान का पस मंज़र साफ नहीं है। यह हर वक्त चाकू जेब में रखता है, अड्डे पाड़ों से भी इसकी वाबस्तगी रही है। ये हाथ छोटा है, बटवा छिन जाने पर यह चोर के पीछे बढ़ गया। एक ज़रा सा बटवा चोरी पर एक आदमी का खून हो गया। इसका कहना है उसने अपना चाकू नहीं निकाला था, एक साथी ने नादानी ना तजर्बेकारी में अपने ही साथी को खुद जख्मी कर दिया, जो बात को मर गया। ये एक और मामला है, कत्ल का मामला। देखना है इस बात में कितनी सदाकत है। इसने मशहूर ज़माना चाकूबाज मैदा जैसे बदमाश के ठिकाने पर जाकर उसे चाकू आजमाई की दावत दे डाली। किस एतमाद में? इस एतमाद में कि ये से ज़ेर कर लेगा, वरना ये आदमी ऐसा बेवकूफ़ नहीं मालूम होता। ये शहर के मशहूर वकील के घर में जबरन दाखिल हो गया। उसका ये भी कहना है कि 2 रातें कबल जो मुसल्ला आदमी अस्पताल में घुसाए थे, वो गली में ज़ख्मी हो जाने और बाद में दम तोड़ देने वाले नौजवान के मुश्तिल साथी हो सकते हैं, और वो नहीं तो वो मैदा के फरिश्तादा हो सकते हैं। ये इनके हाथ ना आ सका और वापस भागते हुए इन लोगों के रास्ते में अस्पताल का पुरजोश मुलाजिम रुकावट बन गया, वो भी अपनी जान से। क्या ये दूसरा कत्ल है? फिर आज सुबह सवेरे तीसरा कत्ल। शहर के एक नामवर वकील का खून। शहर की सारी पुलिस हरकत में आ चुकी है। देर हो गई तो ज़िला से सूबे और फिर मरकज़ी हुकूमत तक बात जा सकती है। सुना है वकील साहब का बड़ा भाई निज़ाम हैदराबाद का मुकर्रब हास है, दरबार में किसी बड़े ओहदे पर फाइज है। निज़ाम सरकार और बरतानवी हुकूमत का तालमेल किसी से ढका छुपा नहीं। ये इंतहाई नाजुक मामला है और पेचीदा रुख इख्तियार कर सकता है। हमें हर मुमकिन कदम उठाना और हर हाल में मोहतात रहना। समझ रहे हैं आप डॉक्टर साहब? बड़े ऑफिसर ने मायूसाना फ़िक्रमंदाना अंदाज में कहा। जी हाँ, समझ रहा हूँ, अच्छी तरह। जिस तरह आप समझा रहे हैं इसी तरह। डॉक्टर राय तीखे लहजे में बोला। ऐसी सूरत में यही मुनासिब है कि हम इसे साथ ले जाएं। क्या? डॉक्टर राय की आंखें फैल गई। आप साथ ले जाएंगे इसे? क्यों, किस लिए? मजबूरी है डॉक्टर साहब, बड़े ऑफिसर ने मतानत से कहा। हमें कुछ और जानना बूझना है। क्या ऐसे हासिल करदा मालूमात में कोई कमी रह गई है? डॉक्टर उखड़ी हुई आवाज़ में बोला। मुझे नहीं मालूम इसने आपको क्या बताया, लेकिन जो कुछ मैं जान पाया हूँ यकीनन इससे मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। मोहतरम डॉक्टर, बड़े ऑफिसर ने मदबाना कहा, मुजरिमों का हमें वसी तजुर्बा है। आपको क्या बताएं कैसे कैसे बहरूपिए तमाशाबाज सामने आते रहे हैं। आप जैसा एक मुकद्दस पेशे से वाबस्ता शख्स इन जराइम पेशा लोगों की शुभकारियों का तस्वुर नहीं कर सकता। हमारे रोज़ो शब इन्हीं लोगों में गुजरते हैं। एक नंबर के चढ़े हुए लोग होते हैं जनाब ये, लेकिन इसके भाई को इसकी रफाकत की ज़रूरत है। ये सरासर इंसानी हमदर्दी की बात है। माफ़ कीजिए डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए नहायत मोअज़्ज़ज़ और मुहतरम है, लेकिन पुलिस और कानून के अपने कुछ मुतालबे होते हैं। मेरी दरख्वास्त है आप समझने की कोशिश कीजिए। इस आदमी की वजह से 3 आदमियों का खून हो चुका है और ये इसका मुतरफ है। क्या कहा आपने? डॉक्टर बरगश्तगी से बोला। ये नहीं, इसने इतराफ़ किया है कि तीनों कत्ल इसने किए हैं? नहीं, मैंने ये कब कहा जनाब? बड़े ऑफिसर ने बाउजलत सराहत की। मेरा मतलब है यही फसाद की जड़ है। कैसी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर राय ने बरहमी से कहा। देखिए आईजी साहब, इसका भाई मेरे ज़ेरे इलाज है, उसकी हालत से मैं वाकिफ़ हूँ, आप नहीं। यहाँ इसकी ज़रूरत है। आप कहते हैं ये यहाँ आके 3 अफराद की मौत का सबब बन गया। सबब बनना और कत्ल कर देना और कत्ल के लिए आमादा करना 3 मुख्तलिफ बातें हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, कल रात ये अस्पताल में था।
अकबर अली खां को रुखसत करने के बाद ये अपने कमरे में आ गया था। क्या इसने अस्पताल में घुस आने वाले हमलावरों को आमादा किया था कि मेरे बजाय एंथनी को खत्म कर डालो? तीसरे के बारे में इसने आपको बता दिया होगा कि वो अपने ही एक अंधे साथी का निशाना बन गया। डाकखाने वाली गली में चोर का पीछा करके ये कौन से जुर्म का मर्तकब हो रहा था? शहर में एक अजनबी मुसाफिर को अपनी जमा पूंजी छिन जाने पर क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना चाहिए था? चोर का पीछा करके उसने अपना बटवा हासिल कर लिया था कि दो आदमी चाकू ताने दीवार बन गए। इनमें एक आदमी से गलती हुई, क्या ये अपने आप को इसके सामने पेश कर देता? फिर पुलिस वाले इसके ताक़ुब में दौड़ पड़े पनाह के लिए। ये एक शरीफुत्तबा वकील के घर में जबरन दाखिल हो गया। इसने सारा वाक़या सुन के हमदर्दी का इजहार किया और किसी नाखुशगवार वाक़े से बचाने के लिए इसके साथ मैदा के ठिकाने पर जाने की जुर्रत कर ली। वकील साहब ने मैदा को हमवार करने की अपनी जैसी कोशिशें की। जिस ख्याल से इस नौजवान ने मैदा के ठिकाने पर जाने का इरादा किया था वो अड्डे पाड़ों की रीत के ऐन मुताबिक था और यकीनन ये किसी एतमाद ही में वहाँ गया था, इस एतमाद में कि ये मैदा को चौकी से उतार सकता है। चाकू पर कोई और इतनी दस्तरस नहीं रख सकता। क्या मैदा ही हर्फ आखिर है? इसके पास कौन सा रास्ता था? फिर मैदा ने अपने गुर्गों और पुलिस के सिपाहियों से मिलकर इसके लिए अस्पताल तक पहुंचने का हर रास्ता बंद कर दिया था। फिर ये क्या करता? वकील के घर छुप जाता, अपने बीमार भाई को अस्पताल में तनहा छोड़ के? डॉक्टर ने लम्हे भर के लिए तवक्कुफ किया था कि अधेड़ ऑफिसर जहर आलूद मुस्कुराहट से बोला, आपको तो डॉक्टर की बजाय वकील होना चाहिए था डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने इसकी जानिब गौर से देखा। उसके चेहरे पर आग सी भड़की। उधर बगली दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर ने नाराज़ी से पूछा, कौन है? अंदर आ जाओ।